Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with HR pre-market report. Let's start with news update. So, US tariff for US government to pause tariff for a month after Mexico agrees to strengthen border security. So, US put on hold for 30 days this tariff escalation of Mexico and Canada. That is good news. Post this news, US markets recovered sharply. Power grid profit down by 4%, revenues down by 3% because of sluggish demand. TV's lab profit up 64%, revenues up 25%. Premier Energies revenues up 140%, EBITDA margin expanded to 30% from 17.3%. So this is really amazing numbers by Premier Energies. Castrol profit up 12%, beats all estimates. Revenues rises 7%. Tube investment profit up 2%, revenues up 0.6%, flattish number. Tata Chemical declares loss of 53 crores, revenues down by 3.8%, and this was hurt by one-time charge incurred in its US operations and dip in soda ash prices. AB Capital revenues down by 4%, profit down by 4%, revenues up by 10%. Now, what are important numbers which are going to be declared today? Titan, Asian Paint, Tata Power, Godrej Properties, Torrent Power, Thermex, Whirlpool, Niva Bupa, Zydus Wellness, Happiest Mind, Metropolis, Azad Engineering and JK Tyre. So post some positive development in US, ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी देखने मिला है. सो डाउ जोन्स रिकवर्ड. सो फ्यूचर वाज डाउन बाय 600 पॉइंट्स इन मॉर्निंग. जो post this news recovered to almost down, they closed down by almost 80 to 100 points. And we can see European markets were negative yesterday, but all Asian markets are up today. Even Gift Nifty up by 125 points. Nikkei, Straits Times, Hang Seng, Kospi, all markets are up by almost 1 to 1.75%. So hopefully we'll open with gap up, but range remains. We can say we are stuck in this range from almost start of Jan, and now it's important. No change in status में कोई चेंज नहीं है. कल जो डिस्कस किया था हमने, जब तक ऊपर का ये लेवल ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होता, वी आर इनटू दिस कंसोलिडेशन जोन. सो ये कंसोलिडेशन जोन में एटलीस्ट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग वर्क कर रहा है. स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट अभी भी है. इट इज गुड दैट ऑन डाउन साइड ऑल्सो. सो शॉर्ट ट्रेड में भी अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है. एटलीस्ट शॉर्ट ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं हम लोग. बैंक निफ्टी स्टिल दिस लेवल नीड टू बी क्रॉस. ये जो ब्रेकडाउन लेवल था, ये जब तक क्रॉस नहीं होता एक मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा हमें. डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न भी बन चुका है, बट एक क्रॉसओवर क्लोज अबोव दिस इज नीडेड सो दैट एटलीस्ट वी गेट दिस डबल बॉटम टारगेट. कल ऑब्वियसली गैप डाउन के साथ, but one thing which I observed yesterday is a good resilience. So after gap down, stock specific panic था mid caps में, but मार्केट में सच इंडेक्स वाइज एक पैनिक देखने नहीं मिल रहा था, बिकॉज देयर वाज फ्यू सेक्टर्स व्हिच आर परफॉर्मिंग लिटिल बेटर. सो अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है कल. पुट राइटिंग अराउंड 23,200 टू 23,300 रेंज. नाउ 23,000 इज अ हायर पुट राइटिंग. यहाँ पे एक सपोर्ट है. 23,500 कॉल पे एक रेजिस्टेंस है. सो वी कैन अज्यूम दिस रेंज फॉर द वीक 23 से 23,500 के बीच का एक रेंज देखने मिल रहा है यहाँ पे. अब चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं. निफ्टी में क्या लग रहा है? निफ्टी 23,382 इज माई स्ट्रॉन्ग अबोव लेवल, जिसके ऊपर एक 23,457 एंड 23,578 का एक टारगेट देखने मिल सकता है. And week below level is 23,291, for which 23,160 से 22,994 का टारगेट देखने मिल सकता है. So what I am expecting today is एक गैप अप के बाद, okay, any pullback, यहाँ कोई भी पुल बैक आता है तो एक
अप मूव के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर गैप अप के बाद जो फर्स्ट 2-3 कैंडल्स का रेंज बनेगा अगर, तो वो रेंज के ऊपर के ब्रेकआउट को भी हम लोग लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी वी कैन सी हियर strong level above level is 49,375 for which 49,672 target बनेगा and second target would be 49,991. 49,112.8 is weak below level जिसके नीचे 48,920 का एक टारगेट बनेगा and 48,714 would be the second target. So now market is in range, so obviously हमें प्ले करना होगा छोटे टारगेट के लिए। अगर कोई भी ट्रेड आप लेते हैं उसको ट्रेल करें एग्रेसिवली, टारगेट पे प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। नाउ चलिए इंडेक्स देख लिया हमें, अब देखते हैं सेक्टर वाइज क्या लग रहा है। सो अगर सेक्टर वाइज हम लोग देखें, ऑब्वियसली एफएमसीजी एक रिकवर होते हुए सेक्टर लग रहा है जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा रिकवरी आ रहा है। एंड ये हमने ऑलरेडी थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था दैट एक सपोर्ट रेंज है, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वहीं से एफएमसीजी सेक्टर घूम रहा है। सो एनी डिप कुड बी अ बाय अपॉर्चुनिटी हियर। ऑटो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नीचे से अच्छा रिकवरी आया है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बजट में ऑटो सेक्टर के लिए कुछ अच्छा था। जो भी इनकम बढ़ेगा that will be spent, so FMCG ऑटो सेक्टर के लिए दिस इज गुड। एंड ऑटो सेक्टर में कल नंबर्स डिक्लेयर हुए, जो मंथली नंबर्स वर आल्सो गुड। फार्मा भी एक रेजिलिएंट सेक्टर रहा है ये सेकंड फॉल में। रियल्टी हैज शोन अ गुड रिकवरी फ्रॉम बॉटम, तो यहां एक सपोर्ट लेवल से रियल्टी इंडेक्स भी रिकवर हुआ है। जो सेक्टर अभी भी वीक है, जो अवॉइड करने चाहिए, आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एनर्जी, इंफ्रा, मेटल्स, पीएसयू बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एंड आईटी अगेन इज इन अ better sectors because I can see here आईटी भी एक सपोर्ट पे आ गया है। सो अगर आपको सेक्टर टॉप डाउन अप्रोच करना है, सो आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, दिस आर यू कैन से बुलिश सेक्टर। एंड कुछ भी शॉर्ट आपको देखना है तो आपको ये सेक्टर में देखना चाहिए। सो होप दिस हेल्प्स गाइस एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम लोग। एंड फॉर वेबिनार सेमिनार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे फिल कीजिए। अगर आप मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है ऑनलाइन ऑफलाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस।